Assalamu alaikum everyone and welcome back to my YouTube channel English Made Easy with the Salim. So this is the video number 6 from our series 30 confusing subjects और ये सीरीज खासतौर पर उन दोस्तों के लिए बहुत ही अहम जो कि दोस्त वन पेपर के इम्तिहानात की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि JST एंड BPS 5 to 15 और बहुत ही मजे की बात यह है कि हमने ये सीरीज अभी स्टार्ट की है और इसकी जो सेकंड वीडियो है जो कि हमने बनाई है वहां से IBA सखर 5 to 15 इंटर कैटेगरी में एक क्वेश्चन नंबर 30 जो है अपेयर हो चुका है। इसीलिए ये सीरीज आई थिंक सो इट इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल टारगेट। सो चलें शुरू करते हैं आज की ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज। लेट्स मूव टू द स्क्रीन। So, dear viewers, we are on a screen. Once again, I welcome you all to my YouTube channel, English Madazi with Salim. So, this is a video number 6 from a 30 confusing subject series. So, let's move. So, this is the number 6, the number of as a subject. So, basically, ये तमाम अहम confusing subjects के अंदर वीडियो बनने जा रही और बहुत ही ये हर एग्जाम के अंदर बहुत ही फेवरेट होती है व्हेन इट कम्स वन पेपर एग्जाम्स। कोई भी एक पेपर का अगर इम्तिहान होता है तो द नंबर ऑफ एज अ सब्जेक्ट बहुत लिया जाता है। अगर आपने अभी इंटर कैटेगरी में देखा हो कि हमारी वीडियो नंबर सेकंड भी वहां से भी जैसे कि द न्यूज हमने वो स्टूडियो सब्जेक्ट के तौर पर हमने स्टूडियोज नाउन जो कि हमें प्लूरल नाउन्स लगते हैं लेकिन वो क्या होते हैं, वो होते सिंगुलर हैं। तो वो भी हमारी वीडियो successfully बन चुकी है because it is a being appeared in an exam. So let's start from this. The number of as a subject. The number is a used before plural nouns. अब देखिए the number of cars, the number of videos, the number of lectures. हमेशा द नंबर ऑफ क्या होता है, प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाता है। और इस्तेमाल क्यों किया जाता है? टू रेफर टू द काउंट और अ टोटल। जैसे कि हमने भी सीखा है अ नंबर ऑफ क्या होता है, मेनी होता है, लेकिन द नंबर ऑफ जब ये इस्तेमाल होता है तो वो होता है काउंट और अ टोटल एंड इट ऑलवेज टेक अ सिंगुलर नाउन। अ नंबर ऑफ कार्स आता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। But when it comes the number of cars, it will take a singular verb. So let's move to the first example. पहला जो example है हमारा, the first sentence, the number of students dash increasing every year. Option A is, option B is are, and option C were, and option D is was. Here if we just talk about, जैसे कि हमने अभी पढ़ा है, the number of के लिए हम क्या करेंगे, we will use a singular verb. तो यहाँ पर हमारे पास दो singular verb हैं. The first one is A and therefore the second one is D was. But here we have every year. Every year हमारा present जो है expression है. So हम क्या करेंगे? The correct option we have the number of student is. Okay, second sentence is here. The number of books dash decreased in a school. So option A हमारे पास है. Option number A is are. Option number B is were. Option number C has. Option number D have. Again we will put here. अगर हम यहाँ पर बात करें the number of है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर singular verb इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास होगा the number of books decrease in the school. Okay, so let's move to the sentence number 3. And the sentence number 3 is the number of research papers published by university dash impressive. यहाँ पर option A हमारे पास है are, B were, C is and D have. So the correct is clear. हमें यहाँ पर singular verb को देखना है and the singular verb is here is option number C. The option number C is the correct. The number of research paper published by university is impressive. Sentence number 4 we have the number of candidates applying for the post dash increase significantly this year. Again, we have a sentence with a blank and there is a number of candidates. So the noun here, candidates is a plural and the number is here. तो हमें यहाँ पर क्या करना है? Let's see which is the correct option. Option A have plural है, so it is not a correct option. Option number B are, again we have a plural, it's not a correct. Option C were, ये भी correct नहीं है.
and option number D is a correct option, and it says it is haze. So the correct option in a 4 is haze. हाँ, चलें चलते हैं अगले सेंटेंस पर, और अगला सेंटेंस हमारा है सेंटेंस नंबर 5, एंड सेंटेंस सेज कि द नंबर ऑफ जॉब एप्लीकेंट्स इन हैदराबाद डैश डबल्ड रिसेंटली। अगेन अगर हम देखें ए बी एंड डी, दे आर प्लूरल, सो हमें क्या करना है, वी आर जस्ट गोइंग टू पुट हियर सिंगुलर, so the correct option is has again. The last, the number of candidates who dash clear intermediate category in a IBS occur dash high. So I think this is a tricky one. ऐसे ही पेपर में आ सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है haven't have. सो सबसे पहले यहाँ पर हमें ये देखना है कि अगर यहाँ पर देखें तो दिस इज अ, यहाँ तक वाला ये पूरे का पूरा क्या है, इट इज अ क्लॉज, ठीक है। और इस क्लॉज का ये जो सब्जेक्ट है, दिस वन इज अ सब्जेक्ट, एंड हेयर पे सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा लगेगा। दिस इज नॉट एप्लीकेबल, दिस इज रॉन्ग ऑप्शन नंबर, एंड ऑप्शन नंबर बी इज आल्सो रॉन्ग। व्हाई इज इट रॉन्ग, आई एम टेलिंग यू, ओके, मैं ये बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हैज तो लगना नहीं है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पोजीशन। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा इज, ठीक है। अब यहाँ पर इज है, तो ए एंड बी इज रॉन्ग, एंड ऑप्शन नंबर सी और डी में से कोई भी एक करेक्ट हो सकता है। सो यहाँ पर देखिए द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु, इट इज टॉकिंग अबाउट द कैंडिडेट्स, ओके, हु, ये वाला जो क्लॉज है, दिस इज टॉकिंग अबाउट द कैंडिडेट्स, ठीक है। वो कौन से कैंडिडेट, कैंडिडेट अब सारे के सारे क्या हैं, प्लूरल हैं। तो यहाँ पर व्हाट डू यू थिंक, इज इट डजंट इज होगा या डोंट इज होगा? जस्ट कीप इन माइंड दिस वन is correct. Okay, the number of candidate is high. So just tell me in comments which one is the correct, C or B. सो आज की इस वीडियो के अंदर हम द नंबर ऑफ एज सब्जेक्ट सीखे। अगर ये वीडियो आप आपके लिए फायदेमंद रही हो तो प्लीज जस्ट लाइक इट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। और इस तरह के अगर आप अंग्रेजी के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, फॉर दैट subscribe our channel. Till then, just keep watching and keep learning.